students, we are studying our chapter tissues, and in our previous class yesterday we studied about differences in plants and animals, that in plants body is stationary and that's why the most of cells in plants are dead, whereas animals body shows movement or locomotion, so their cells are living. So as the body of plants and animals is different, so the plants and animals are made of different types of tissues. So today we will be studying plant tissues in detail. Plant tissues are of two types. One is meristematic tissue and they are also called as dividing cells or dividing tissues, and second is permanent tissues. These cells lose the ability to divide and start doing functions. And if we see further types of meristematic tissues are of three types. One is apical meristematic, second is lateral meristematic, and third is intercalary meristematic. These are the three types of meristematic tissues depending upon their position. So we will be studying about these meristematic tissues and their types in detail. As an activity shown in your book in NCERT, that two jars are taken. Each jar contains water. One jar is named as jar 1 and the second is named as jar 2. We have taken equal amount of water in both the jars, and what we have done, we have kept the onion bulbs. जो अनियन है वो रख देनी है उनके माउथ के ऊपर. इस तरह से रखनी है कि दे शुड नॉट बी कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर. सिर्फ जो है उसका कुछ एक एरिया वाटर को टच करना चाहिए. एंड व्हाट वी विल सी दैट आफ्टर फ्यू डेज दीज रूट हेयर्स विल स्टार्ट ग्रोइंग. इनकी जो टिप है, जो लेंथ है रूट हेयर की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. देन व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर थर्ड डे, what we have to do, we have to cut the tip of the root hair of second jar. जब हम second jar की root hair के tip को cut कर देते हैं और फिर अगर हम उन्हें कुछ days के लिए observe करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो जार 1 है वहाँ पर जो रूट हेयर का ग्रोथ है दैट इज़ कॉन्टीन्यूस, जबकि जो जार 2 है वहाँ पर जो रूट हेयर का ग्रोथ है वो क्या हो गया है, स्टॉप हो गया है. Now the question is, which of the two onions has longer roots and why? If we do this practically in our class, what we will see that jar 1 has longer roots. Why? Because there are some special tissues called as meristematic tissues present on the tip of root hair. So they will keep on dividing and producing new cells and length will keep on increasing. Then do the roots continue growing even after we have removed their tips? अगर हम सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो आंसर होगा नो. जब हम रूट हेयर के टिप्स को कट करके रिमूव कर देते हैं तो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज नहीं होगी. देन आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई शुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम? बिकॉज जार 2 में हमने टिप्स कट की, वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट थे, एंड बिकॉज वी हैव कट द टिप, that's why there is no meristematic tissues now there, and so the cells will stop dividing, so there will be no increase in the length of the root tip. तो यहाँ इस एक्टिविटी से हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स पर कुछ स्पेशल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर कुछ स्पेशली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज डिवाइडिंग सेल्स आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. Depending on their position, we have three types of meristematic tissues. We have just talked. You can see this in this diagram also. Apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue and lateral meristematic tissues. ये जो हैं डिफरेंट पोजीशंस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, जिसके कारण एक प्लांट जो है उसकी अपेक्स भी ग्रो करती है, यानी उसकी टिप भी ग्रो करती है, उसकी थिकनेस भी इंक्रीज़ होती है और दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है. सो नाउ लेट अस हैव द लुक ऑन दिस, व्हाट इज़ टिप और व्हाट इज़ नोड. देखिए बेटा, जो प्लांट का अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज अपेक्स. अब जहाँ पर लीव्स लगे होते हैं, लीव्स जिस पॉइंट से स्टेम के साथ अटैच्ड होते हैं उन्हें हम नोड बोलते हैं, और दो नोड्स के बीच में, एक नोड पर एक लीफ लगा हुआ है, सेकेंड नोड पर सेकेंड लीफ लगा हुआ है, और उन दोनों नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनोड. तो वहाँ पर आप देखते हैं जब एक प्लांट यंग होता है
छोटा होता है, 2 लीव्स के बीच में डिस्टेंस कम है, और जैसे जैसे हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं उनके 2 लीव्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ये कैसे इंक्रीज़ हुआ? बिकॉज स्पेशल टिश्यू नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ प्रेजेंट देयर, और वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या करेगा, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ कर रहा है। अपेक्स जो है वो टिप पर प्रेजेंट है, वहाँ पर जो है क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है लेंथ, और इंटरकैलरी में 2 नोड्स के बीच यानी इंटर नोड्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। एंड थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट इज़ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये प्लांट की गिर्थ यानी थिकनेस को बढ़ाता है। इफ़ वी सी अ यंग प्लांट एंड देन वी सी अ मेच्योर प्लांट, व्हाट वी विल सी द डिफरेंस दैट यंग plant has thin stem whereas the mature plant has thick stem. How it has happened? Because lateral meristematic tissue is present there. This tissue has added new cells to this area and that's why the thickness of the stem has increased. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं इनकी सेल्स अपने अपने पॉइंट्स पर क्या करती हैं, डिवाइड होती हैं, न्यू सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, और प्लांट के डिफरेंट एरियाज़ की लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट next is what is the specialty of these meristematic tissues। अगर हम टिश्यूज़ के बारे में हम सबको क्लियर है that tissues are the group of cells which are performing a particular function and which are similar in structure। तो जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैं, एक पर्टिकुलर काम कर रही हैं, वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की सेल्स की अगर हम बात करें, बिकॉज दीज सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग, फटाफट क्विकली वो डिवाइड हो रही हैं, दैट्स वाई दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। उनके पास खूब सारा साइटोप्लाज्म है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म जो है उस सेल की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो इफ़ देयर विल बी मोर साइटोप्लाज्म, मोर ऑफ द एक्टिविटीज़ इन द सेल विल टेक प्लेस। थिन सेलुलोज वॉल, इनकी वॉल जो है जो कि सेलुलोज की बनी है वो भी क्या रहेगी, थिन रहेगी, ताकि जो है डिवीजन में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। एंड देयर विल बी अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा हर एक सेल के पास। दे लैक वेक्यूल्स, वेक्यूल्स नहीं होंगे। व्हाट इज़ द रीज़न वाई दे डू नॉट हैव वेक्यूल्स? बिकॉज वेक्यूल्स आर देयर इन द बॉडी ऑफ अ सेल टू स्टोर एक्सेस ऑफ वेस्ट एंड एक्सेस ऑफ थिंग्स। लेकिन ये सेल्स तो इतनी क्विकली मल्टीप्लाई हो रही हैं कि इनके पास कुछ एक्सेस नहीं है, कुछ वेस्ट नहीं है, एंड दैट्स वाई दे डू नॉट हैव वेक्यूल्स। सो these are the 3 types of meristematic cells we have studied: apical meristematic, then intercalary meristematic, and then lateral meristematic. Apical meristematic is present at the apex, intercalary is present between the internodal areas, and lateral is present there to increase the thickness of the plant. So these are the 3 types of meristematic tissues. Now we will study about permanent tissues. So what is a permanent tissue? मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने डिवाइड होकर के अपना फंक्शन कर दिया, लेंथ इंक्रीज़ कर दी, लेकिन प्लांट को सिर्फ लेंथ इंक्रीज़ तो नहीं होनी है, प्लांट की सेल्स डिफरेंट फंक्शंस भी करेंगी। कोई वाटर एब्जॉर्ब कर रही है, कोई फूड को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। सम ऑफ द सेल्स विल हेल्प इन ट्रैपिंग सनलाइट, सम ऑफ द सेल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग थिकनेस एंड ऑल। यानी कि हर प्लांट के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो रहा है, चाहे फूड की सप्लाई हो रही है, चाहे वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्प्शन हो रही है, या स्टोरेज हो रहा है, इन सब के लिए भी प्लांट्स के पास क्या हैं, स्पेशल सेल्स हैं। व्हेन मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो अपना काम कर लेती हैं, डिवाइड होना बंद कर देती हैं, वो सेल्स क्या कर देती हैं, दे लूज़ देयर एबिलिटी टू डिवाइड, उनकी एबिलिटी डिवाइड होने की ख़त्म हो जाती है। एंड देन दोज सेल्स स्टार्ट परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। एंड व्हेन ए सेल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन, तो हम क्या कहते हैं कि सेल हैज़ बिकम डिफरेंशिएटेड, एंड दोज डिफरेंशिएटेड सेल्स आर कॉल्ड एज permanent tissues or permanent cells. So we will be studying about 3 types of permanent cells.
ऑफ सिंपल परमानेंट। अब देखिए बेटा, परमानेंट को भी हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अगर हम अपने डायग्राम को देखते हैं, यहाँ पर ये परमानेंट टिश्यू है। लॉस्ट एबिलिटी टू डिवाइड, इन्होंने डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज़ कर दिया है। दीज आर ऑफ ऑल्सो 2 टाइप्स, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू and complex permanent tissue. Simple permanent tissue is of 3 types, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. और complex permanent tissue is of 2 types, xylem and phloem. So your homework is learn the names of these simple tissues and complex tissues and learn this flow chart of the whole plant tissue. There are 2 questions given on this page. Solve these questions, go through the chapter and learn the important points of this chapter. Next we will continue tomorrow.